Hello student, welcome back to my channel. So in today's video we are going to cover one of the very important topic that is called trade cycle, its features and phases. So we will understand what is trade cycle, what are the feature and what are the phases. So let's start with the video. Before start the video, it's my humble request, please watch entire video. Next, first we'll understand what is trade cycle. So trade cycle is a wave like movement in economic activity. It means that whenever there are ups and down in economic activity, जब economic activity में उतार और चढ़ाव आते हैं, that is called trade cycle. We have observed, especially in a pandemic period, there are many economic activity, like there are many economic activity ups and down took place. So जब भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अप और डाउन होती है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड साइकिल. फॉर एग्जाम्पल, समटाइम वी आर इंजॉय प्रॉस्पेरिटी, समटाइम वी आर सफरिंग फ्रॉम रिसेशन, डिप्रेशन. सो जब इकोनॉमिक एक्टिविटी अप्स एंड डाउन होती है, उतार और चढ़ाव आते हैं ड्यू टू एनी रीज़न, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड साइकिल. नेक्स्ट इज दैट trade cycle also known as economic fluctuation or trade cycle और बिजनेस साइकिल और साइक्लिकल फ्लक्चुएशन. सो ट्रेड साइकिल को हम इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन भी कहते हैं, बिजनेस साइकिल भी कहते हैं, साइक्लिकल फ्लक्चुएशन. सो इन शॉर्ट, वेन एवर देर आर फ्लक्चुएशन एंड वेन एवर देर आर चेंजेस इन बिजनेस एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल. Now biggest question arise that what are the reason for trade cycle? क्यों हमारे business activity में ups and down आते हैं? So there are many reason which lead to trade cycle. So whenever there are changes in variables like GDP, gross domestic product, national income, और वी कैन से PCI, पर कैपिटा इनकम. जब हमारी नेशनल इनकम अप्स एंड डाउन होती है, जब हमारी पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज इनकम ऑफ पर पर्सन. सो व्हेन इट अप्स एंड डाउन, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट अप्स एंड डाउन, इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज होती है, या फिर वी कैन से इंटरेस्ट रेट इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है, दैट टाइम देर आर ऑल्सो फ्लक्चुएशन टेक प्लेस इन अ बिजनेस एक्टिविटी. सो whenever there are changes in a मैक्रो वेरिएबल, जब हमारे मैक्रो वेरिएबल में कुछ भी चेंजेस होता है, सो आर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑल्सो फ्लक्चुएट एंड दैट लीड टू ट्रेड साइकिल और बिजनेस साइकिल. ना क्वेश्चन अराइज कि क्यों इन मैक्रो वेरिएबल में चेंजेस होता है. सो देर आर मैनी रीजन विच लीड टू चेंजेस in macro variable such as natural calamities, then political changes, terrorist attack, and the biggest example of today's is pandemic period of coronavirus. See, we have observed that in pandemic period of coronavirus, our economic activity has slowed down. Many people lost their job, many company has collapsed, many people shut down their shop. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने सर्वाइवल के सोर्सेज खो दिए हैं. सो इट मीन दैट देर आर अप्स एंड डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो दिस all reason are responsible for a fluctuation in a business cycle or trade cycle. So in short, ट्रेड साइकिल का मतलब होता है वेन एवर देर आर अप्स एंड डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी. जब इकोनॉमिक एक्टिविटी में उतार और चढ़ाव आता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड साइकिल. We'll understand this concept with the help of diagram. So in the diagram you can see there are ups and down movement. So you can see in the diagram peak period. Peak period मतलब ऐसा period where economy in a boom form, मतलब हमारी economy एक prosperity के highest point पे है. So here we are rich. सो पिक पीरियड इज़ द पीरियड विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड बूम पीरियड, जहाँ हमारी इकोनॉमी एकदम एक्सपांशन के फॉर्म में है. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू हैंडल दिस पीरियड, देन वी कैन एंटर इन द फेज ऑफ रिसेशन. रिसेशन मीन्स स्लोली फॉल डाउन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाना. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू कवर इट, see, recession always take place for a short period of time, and if we are not able to handle our economy in this situation, then we can enter in a next phase that is called depression period. And in depression period, all economic activity will slow down. Then next is trough. Trough is a part of depression.
एंड इन ट्रफ पीरियड ऑल द इकोनॉमिक रेट सब एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे आता है. सो पीक इज द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रेड साइकिल एंड ट्रफ इज द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रेड साइकिल. एंड व्हेन वी रीच इन अ ट्रफ period, that time government takes some action and slowly our economy started to recover. So as we started to recover, we again reach in a prosperity phase, and when this prosperity maintain, again we reach to peak period. So you can see in the diagram, peak to recession, recession to depression, depression to trough, trough to recovery, recovery to prosperity. This process will repeat again and again in a wave like movement. That is called phases of business cycle. Then we'll understand features of trade cycle. There are following features of trade cycle. Number one is called wave like movement. See, trade cycle मतलब whenever there are wave like movement, as we have seen ocean में कैसे ups and down waves होती है. So same here, whenever there are wave like movement in economic activity, whenever there are upward and downward movement in a economic activity, that is called trade cycle. So the biggest feature of trade cycle is that कि इन इकोनॉमिक एक्टिविटी में अप्स एंड डाउन मूवमेंट होते हैं. जब हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अप एंड डाउन होती है बहुत सारी चीज़ों को लेके, सो दैट इज़ कॉल्ड ट्रेड साइकिल. नेक्स्ट इज डिफरेंट फेजेस. Trade cycle have different phases. The sequence is recovery, prosperity, recession and depression. Many times this question asked in a UGC NetSet exam. So in a trade cycle, the sequence of phases are recovery, prosperity, recession and depression. So trade cycle have different phases. Next is different types and duration. See, there are different types of trade cycle take place. कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, तो उनका टाइप और ड्यूरेशन अलग अलग है. कुछ शॉर्ट के लिए होते हैं, कुछ लॉन्ग के लिए होते हैं, कुछ मीडियम पीरियड के लिए होते हैं. नेक्स्ट इज एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. व्हेन ट्रेड साइकिल टेक प्लेस, जब भी ट्रेड साइकिल आता है, दैट टाइम many economy activity will expand and many economy activity will contract. So whenever ट्रेड साइकिल टेक प्लेस, अगर हम एक्सपांशन के पीरियड में हैं, देन वी विल इंजॉय इंक्रीजिंग प्रोग्रेस. एंड इफ़ ट्रेड साइकिल टेक प्लेस और हम रिसेशन एंड डिप्रेशन के पीरियड में हैं, देन मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटी विल कॉन्ट्रैक्ट. ओके, वन मोर थिंग पॉइंट आई वांट टू एड यू, दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स एंड ड्यूरेशन. सी, बहुत सारे टाइप के ट्रेड साइकिल होते हैं, माइनर, मेजर. सो इस तरह से बहुत सारे टाइप्स के ट्रेड साइकिल होते हैं. नेक्स्ट इज रिकरेंट बट नॉट पीरियडिक. सी, ट्रेड साइकिल जो होते हैं वो रिकरेंट इन नेचर होते हैं. रिकरेंट मीन्स जो रिपीट होने वाला है वापस. सो ट्रेड साइकिल इज अ रिकरेंट इन नेचर. यू नो, दे फॉलो सीक्वेंस, बट वो पीरियडिकल नहीं होते कि कब आने वाला है. सो ट्रेड साइकिल विल रिपीट, ट्रेड साइकिल विल टेक प्लेस, वो आने ही वाला है, बट इट इज़ नॉट पीरियडिकल. मतलब उनका कोई पीरियड फिक्स नहीं कि व्हेन इट इज़ गोइंग टू बी टेक प्लेस, फॉर हाउ मेनी टाइम, for how many days. Then minor and major cycle. As I told you, there are different types of trade cycle. So the sometime trade cycle can be minor and sometime it can be major. Minor trade cycle always take place for a year 3 to 4 years, and major trade cycle always operate between years 4 to 8 years. So minor trade cycle का duration है 3 to 4 years and major trade cycle का duration है 4 to 8 years. Next is dynamic. When trade cycle take place, that time many changes take place in many सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. जब भी ट्रेड साइकिल आता है तो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज हो जाती है. बिगेस्ट एग्जाम्पल वी हैव ऑब्जर्व्ड इन अ पेंडेमिक पीरियड. ड्यू टू पेंडेमिक पीरियड ऑफ कोरोना वायरस, मैनी इकोनॉमिक एक्टिविटी चेंज. तो जिससे हमारे बहुत सारे सेक्टर के काम करने का तरीका बदल गया. फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन टीचिंग स्टार्टेड, देन वर्क फ्रॉम होम, देर वर मैनी एक्टिविटी जहाँ पर हम ऑनलाइन डिलीवरी कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट. सो यू नो, लाइक द पॉइंट इज दैट कि trade cycle bring so many changes in a many sectors of economy. Sometimes it can be positive, sometimes it can be negative. Then characterized by the presence of crisis. See, when trade cycle take place, then it always create crisis. Then crises are always take place in a sudden or we can say violent way. जैसे कि अगर if we take example of a great depression of 1929 to 30 और 33. So जब ये एक तरह का ग्रेट डिप्रेशन आया था, दैट टाइम एंटायर वर्ल्ड वॉज सफर्ड.
It took time to come out entire world from that depression. सो द पॉइंट इज़ दैट कि ट्रेड साइकिल हमेशा एक क्राइस लेके आता है. फॉर एग्जाम्पल इन पैंडमिक पीरियड मैनी पीपल लॉस देयर जॉब, मैनी कंपनीज वर कोलैप्स, मैनी पीपल लेफ्ट देयर प्लेसेस, दे वेंट टू विलेजेस. सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जॉब खो दी है, और देर आर मैनी पीपल जहाँ पर जॉब चली गई है. स्पेशली इन टीचिंग फील्ड इफ यू फाइंड आउट देर आर मैनी टीचर्स दोज आर जॉबलेस, उनके पास जॉब वगैरह नहीं है. सो द पॉइंट इज दैट के ट्रेड साइकिल ऑलवेज कैरेक्टराइज विद द क्राइसिस एंड इंटरनेशनल इन नेचर. ट्रेड साइकिल आर ऑलवेज इंटरनेशनल इन नेचर. इट मीन दैट प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन ये एक कंट्री में है तो दूसरी कंट्री भी इससे अफेक्ट होने वाली है. बिगेस्ट एग्जाम्पल ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 to 1933. व्हेन दिस डिप्रेशन टुक प्लेस इन यूएसए, दैट टाइम एंटायर वर्ल्ड वॉज सफर्ड. सो द पॉइंट इज दैट कि ट्रेड साइकिल एक इंटरनेशनल है अपने नेचर में. इट मीन दैट कि अगर वो एक कंट्री को हुआ तो उसके आसपास की सारी कंट्री को भी वो अफेक्ट करने वाला है. नेक्स्ट इज phases of trade cycle. Trade cycle have 4 phases. The sequence is recovery, prosperity, recession and depression. So first we'll talk about prosperity. Prosperity में क्या होता है? In prosperity period, expansion of output, income, employment, prices, profit which lead to higher standard of living. प्रॉस्पेरिटी पीरियड में हमारा आउटपुट ज़्यादा होता है, इनकम ऑल्सो इंक्रीज, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो इंक्रीज, प्राइसेस ज़्यादा होती है, प्रॉफिट ज़्यादा होता है. सो वी ऑल आर इंजॉइंग हाइयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. वेन एवर इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज तो हम पहुंच जाते हैं पिक पीरियड पे, एज आई शोन यू इन द डायग्राम कि वेन एवर वी आर मेंटेनिंग इन अ प्रॉस्पेरिटी पीरियड दैट टाइम वी रीच एट हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ ट्रेड साइकिल, दैट इज कॉल्ड पिक पॉइंट, एंड दैट पिक पॉइंट इज नोन एज बूम पीरियड. सो इन शॉर्ट प्रॉस्पेरिटी पीरियड में हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी अपवर्ड रहती है. नेक्स्ट इज व्हाट इज पिक पॉइंट. पिक पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी फेज. सी स्टूडेंट बी रिमेंबर वन थिंग कि पिक पॉइंट कोई अलग फेज नहीं है, पिक पॉइंट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉस्पेरिटी फेज. पिक पॉइंट क्या होता है? इट इज़ द हाइएस्ट पॉइंट ऑन अ साइक्लिकल पॉइंट एज आई शोन इन द डायग्राम. पिक पॉइंट जो होता है वो डायग्राम का हाइएस्ट पॉइंट होता है, एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड टर्निंग पॉइंट बिकॉज इफ़ वी आर नॉट एबल टू मेंटेन दैट पिक पॉइंट देन आर ऑल वेरिएबल विल स्टार्ट टू फॉल डाउन एंड वी कैन रिच इन अ फेज ऑफ रिसेशन. वॉट आर द रीज़न बिहाइंड फॉलिंग इन ऑल द वेरिएबल? सी पिक पॉइंट मतलब हाईएस्ट पॉइंट. अगर हम उस हाईएस्ट पॉइंट को मेंटेन नहीं कर पाते तो हम रिसेशन में पहुंच सकते हैं. एंड व्हाट आर द रीज़न? रीज़न कैन बी एनीथिंग, नेशनल, ग्लोबल. फॉर एग्जाम्पल एज आई टोल्ड यू पेंडेमिक पीरियड की वजह से पूरा का पूरा वर्ल्ड अफेक्टेड है ड्यू टू सम कंट्रीज लाइक चाइना. ड्यू टू चाइना एंटायर वर्ल्ड सफर्ड. सो बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जिनका इकोनॉमी फॉल डाउन हो गया है. नेक्स्ट इज वेन एवर ग्रेट डिप्रेशन वॉज देयर, सो जिससे भी क्या है हमारी कंट्री पूरी सफ़र हो रही थी. सो द पॉइंट इज़ दैट कि अगर किसी भी पिक पॉइंट को हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो हमारी इकोनॉमी रिसेशन में एंटर हो जाती है. और देर आर मैनी रीज़न, नेशनल हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है. देर आर मैनी वेरिएबल कैन अफेक्ट एंड सेंड आर इकोनॉमी इन अ फेज ऑफ रिसेशन. रिसेशन क्या होता है? आफ्टर टर्निंग पॉइंट इकोनॉमी मूव टू डिप्रेशन थ्रू रिसेशन फेज. सी हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में कब जाती है? वेन एवर इट इज़ इन अ रिसेशन फेज. सो आफ्टर टर्निंग पॉइंट इकोनॉमी कैन मूव टू डिप्रेशन थ्रू रिसेशन. रिसेशन में क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन, डिमांड फॉल, प्रॉफिट फॉल, आउटपुट फॉल, इन्वेस्टमेंट फॉल, इनकम फॉल, एम्प्लॉयमेंट फॉल. Businessmen lose their confidence, they became pessimistic. Pessimistic means निराशावादी. Then we people lose our job, then order also cancel. But this period take place for a short period of time. ये जो होता है recession always take place for short period of time. If we are able to use some very important or we can say very effective policy, then we can come out from this phase. सो द पॉइंट इज़ दैट कि रिसेशन पीरियड से हम डिप्रेशन में एंटर होते हैं. इफ़ वी आर नॉट एबल टू
मेंटेन, और वी कैन से इफ़ यू आर नॉट एबल टू कम आउट फ्रॉम रिसेशन पीरियड, तो हम डिप्रेशन पीरियड में जा सकते हैं। और रिसेशन का जो पीरियड होता है वो शॉर्ट फॉर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सी वी कैन टेक एग्जाम्पल इन पेंडेमिक पीरियड, मैनी पीपल दे लॉस्ट देयर जॉब, ऑर्डर कैंसिल हो गए, बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन है उनका बिजनेस बंद हो गया है, डिमांड, प्रॉफिट, आउटपुट, इन्वेस्टमेंट, इनकम, एम्प्लॉयमेंट सब कम हो गया है। बट गवर्नमेंट हैज़ टेकन सो मेनी स्टेप्स, जैसे कि आत्मनिर्भर योजना स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, देन दे ऑल्सो डिक्रीज द CRR रेट, देन रेपो रेट। सो ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं जिससे थोड़ा बहुत हमारा रिसेशन पीरियड कंट्रोल हो सके। ओके, एज आई टोल्ड यू, इफ़ यू आर नॉट एबल टू कंट्रोल एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू मेंटेन आवर इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन इन रिसेशन पीरियड, देन वी कैन रीच इन अ डिप्रेशन पीरियड। डिप्रेशन पीरियड में क्या होता है? कंटिन्यूस डिक्रीज इन अ मैक्रो वेरिएबल। अगर रिसेशन पीरियड में हमारा जो भी वेरिएबल है कंटिन्यूसली फॉल हो रहा है एंड वी आर नॉट एबल टू मेंटेन इट, देन वी कैन रीच इन अ depression period. In depression period there will be fall in a standard of living and all economic activity will come down. as I told you, जब इंटरनेशनल लेवल पे ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 टू 1933, दैट टाइम एंटायर वर्ल्ड सफर्ड फ्रॉम अ बिग क्राइसिस, तो जिससे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉल हो गया था एंड ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन, और जिससे डिप्रेशन सेट हो गया था। सो द पॉइंट इज दैट कि इफ देयर आर slow down in economic activity for short period of time and we are not able to handle, we are not able to correct it, then we can go in a phase of depression, और डिप्रेशन में हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाती है। वी डू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जीडीपी फॉल हो जाती है, प्राइस कम हो जाता है, प्रॉफिट कम हो जाता है, देन डिप्रेशन से हम लास्ट और लोवेस्ट पॉइंट पे जाते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रफ पीरियड। सो ट्रफ इज अनदर turning point of a trade cycle. What is trough point? Student, be remember, trough point is not another phase. Trough point is just a part of depression phase. Trough is the last and lowest point of a trade cycle. ट्रफ जो है वो डिप्रेशन फेज का पार्ट है। इन ट्रफ पॉइंट एवरीथिंग इज़ वेरी लो, वी आर एट ए लोवेस्ट पॉइंट, मतलब सब इकोनॉमिक एक्टिविटी एकदम लोवेस्ट, एकदम कम हो जाती है। नेक्स्ट, recovery. When we are at a trough point, that time government takes some initiative. They introduce some policies like fiscal policy, monetary policy to come out from that trough period. For example, अभी अगर हम recently एक एग्जाम्पल लेंगे, दैट ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 टू 1933, so that time we were in a trough point. So government has taken so many initiatives, like they have introduced so many policies, they have introduced so many job opportunity, इससे धीरे धीरे इकोनॉमी ऊपर आने लगती है। सो रिकवरी एक ऐसा पीरियड है वेयर वी रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। सो रिकवरी पीरियड इज़ अ रिवाइवल ऑफ इकोनॉमी। देन रिकवरी पीरियड में क्या होता है, गवर्नमेंट जो होते हैं वो नए नए प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस करके मार्केट में इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट के अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है, जिससे हम उस ट्रफ पीरियड्स के, उस डिप्रेशन पीरियड से बाहर आ सके। सो इन अ रिकवरी पीरियड देयर इज अ एक्सपांशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। if there is a expansion of economic activity, automatically there will be rise in demand. जैसे गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकती है, देन गवर्नमेंट कैन इंट्रोड्यूस मोर जॉब अपॉर्चुनिटी। सो व्हाट विल हैपन इन रिकवरी पीरियड, देयर इज ए एक्सपांशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच लीड टू राइज इन डिमांड, और डिमांड बढ़ गया देन राइज इन अ प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन बढ़ गया देन देयर इज राइज इन इन्वेस्टमेंट। सो ऑटोमेटिकली इकोनॉमी विल ट्राई टू रिकवर। देन स्टडी राइज इन ऑल इकोनॉमिक वेरिएबल। रिकवरी पीरियड में धीरे धीरे जितने भी हमारे वेरिएबल्स है लाइक पर कैपिटा इनकम, जीडीपी, देन इन्फ्लेशन, और वी कैन से एम्प्लॉयमेंट लेवल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, दे स्टार्टेड टू इंक्रीज। देन इकोनॉमी एंटर इन अ फेज ऑफ प्रॉस्पेरिटी। आफ्टर रिकवरी पीरियड इफ़ वी आर एबल टू मेंटेन इट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और वी कैन से रिकवरी में अगर हम थोड़ा रिकवर हो रहे, देन वी कैन एंटर इन अ नेक्स्ट फेज विच इज़ कॉल्ड प्रॉस्पेरिटी. So in prosperity period, businessmen gain their confidence, they became very optimistic आशावादी हो जाते हैं. Then bank credit expand, बैंक भी लोन देना स्टार्ट हो जाता है. Then again increase in employment, income increase हो जाती है. There is increase in aggregate demand, total demand, price increase हो जाता है, profit increase हो जाता है. Then again we reach to peak point.
So the point is that trade cycle is a one type of phase, or we can say trade cycle means ups and down in economic activity. So first we are in a peak period, peak 2 we enter into recession, recession 2 we enter into depression, depression 2 we enter at a trough point, then recovery, then prosperity, then peak, recession, depression, trough. This process is going like a ups and down way. So in short, trade cycle is like a wave like movement. So we, or in short we can say कि trade cycle मतलब होता है whenever there are ups and down movement in economic activities, that is called trade cycle. Student, please watch entire video. This video will definitely help you to clear your doubt about the features as well as phases. Thank you so much.